यूहन्ना चैप्टर 8 में एक घटना के विषय में लिखा है। So, John chapter 8 talks about an incident. यहाँ पर एक स्त्री के विषय में लिखा है, व्यभिचारिणी स्त्री। It talks about an adulterous woman. हमेशा से मैं सोचता था ये व्यभिचारी स्त्री मरिया मगदलीन है। So, many a times I thought this is Mary Magdalene. और कई बार कुछ लोग बोलते भी है मरिया मगदलीन है करके, And even many a times other people also say this. लेकिन यहाँ पर इसका किसी का नाम नहीं दिया गया है मरिया मगदलीन है करके। But the Bible does not mention any name over here. हम बोलते हैं, ये हमारा विचार है वो मरिया मगदलीन है करके। This is our view that this may be Mary Magdalene. देखो बाइबल कहता है यीशु मसीह ने मरिया मगदलीन के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाले 7। So the Bible says that Jesus removed 7 evil spirits from Mary. वो लूका अध्याय 7 में हम पढ़ सकते हैं। We read that in Luke 7. और बाइबल ये भी कहता है मरिया मगदलीन शिमोन कोढ़ी के घर गई थी। And we also know that Mary Magdalene went to the house of this priest. और बहुमूल्य इत्र फोड़कर यीशु के पैर पे डाला। And she, cracked open that alabaster vial. और उसके बाद उसने अपने सर के बालों से पूछा। And she wiped Jesus' feet with her hair. वहां पर मरिया मगदलीन का नाम लिखा हुआ है, Over there, her name is mentioned as Mary Magdalene. लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है। But over here, the name is not तो mentioned. हमको पता नहीं है कौन सी स्त्री है। So we don't know who this woman is. हो भी सकती है मरिया मगदलीन, It could be it's Mary नहीं भी Magdalene. हो सकती है। It may also not हमको वो be. डिबेट में नहीं पढ़ना। We do not want to get into that debate. हमको ये चीज में क्या सीखने मिलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। The important thing is what do we get to learn from it. देखो हमको पता है ये केस में क्या हुआ है। We know what happened over here. यहाँ पर कुछ यहूदी फरीसी लोगों ने एक स्त्री को पकड़कर यीशु के चरणों में लाया। Some Pharisees caught this adulterous woman and brought her at उनको- Jesus' feet. उनको उस स्त्री से कोई मतलब नहीं था, They were not interested in this woman. उनको यीशु को ट्रैप करना था। They wanted to trap Jesus. और वो पर्पस लेकर वहां पर आ गए। And that was the purpose why which they came there. और उन्होंने यीशु से कहा, पर मूसा ने हमें आज्ञा दिया है, जो ड्यूट्रोनॉमी 22 के 22 में हम पढ़ सकते हैं। And they said that Moses has given this command which we can read in Deuteronomy 22:22. व्यवस्था विवरण 22 में मूसा कहता है जो कोई व्यभिचार करता हुआ दिखे वो आदमी और औरत को मारो। So in Deuteronomy 22 it says that anyone who's caught in adultery should be stoned to death. और ये वचन लेकर वो यीशु के पास आ गए। And with this scripture they came to Jesus. और यीशु को बोलता तू क्या कहता है? And they asked Jesus, what do you say about it? और यीशु मसीह कहता है कि तुम में से जो निष्पाप है वो मारो उसको पहला पत्थर। And Jesus says, as one who is without sin should cast the first stone. यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता हम में से जो निष्पाप है तो हम मारेंगे उसे, And Jesus didn't say that amongst us who is the one who has sin should do it. क्योंकि यीशु मसीह को उसको नहीं मारना था, Because Jesus didn't want to stone her. वो लोग को मारना था। They wanted to stone her. इसीलिए यीशु कहता तुम में से जो निष्पाप है वो मारो उसको। And that's why he said that amongst you who is the one who is without sin should stone. और बाइबल कहता है सब निकल गए, And the Bible says that everyone left one by बड़े one. से छोटे निकल गए, From the eldest to the youngest left one by क्योंकि one. बड़ों का पाप ज्यादा रहता है, Because the older ones have more sin. छोटों का थोड़ा कम, And the younger ones have less. तो बड़े लोग पहले निकल गए, So the older ones left first. पीछे पीछे छोटे लोग। And behind them the younger ones. तो छोटे लोग भी आए थे मारने के लिए। So even the younger ones had come to stone her. भयानक बात है। Isn't this terrible? और ये स्त्री को देखो, And look at this woman. मैंने पिछले हफ्ते यूथ को भी ये बताया था। And the last week I told this to the youth as well. सोचो वो स्त्री के जगह हम होते Imagine if we would have been in the place of this woman. और हमको मारने के लिए वो लोग आए थे, And if someone was coming to stone वो लोग us. चले गए, And they left. हम क्या करेंगे? What would we do? कुछ लोगों ने बोला हम भी साइड से निकल जाएंगे, So some said even we would leave. हम भी साइड से निकल जाएंगे, And we would also leave. बट सब कुछ लोगों ने कहा हम रुक जाएंगे। But some said that we will stay. तो हमारे लिए प्रश्न है, So this is a question for us. हम क्या करेंगे? What are we going to do? वो स्त्री वहां खड़ी रही That woman was standing over और there. परमेश्वर ने ये चीज से मुझसे बातें की थी And the Lord spoke to me regarding this. कि वो स्त्री वहां क्यों खड़ी रही। Why was this woman standing there? दोष लगाने वाले तो चले गए, The one who were accusing her have left. तो वो क्यों खड़ी रही? Why was she standing उसको there? यीशु से कुछ चाहिए था, Because she wanted something from Jesus. राइट? Isn't it? वो इसलिए खड़ी रह गई She was standing there क्योंकि उसको यीशु से कुछ चाहिए था, because she wanted something from Jesus. और वो खड़ी रहने के वजह से And because she was standing there, यीशु ने उसको दो चीज कहा। Jesus said two things to her. आगे आप पढ़ोगे तो देखो We will read that. उसमें लिखा है, यीशु उसे पूछता है 10वें वचन में, यूहन्ना अध्याय 8 उसका 10वां वचन में, John chapter 8 verse 10. वहां पर यीशु पूछता है Jesus says over there, क्या किसी ने भी तुझ पर दोष दंड नहीं लगाया? did no one condemn you? तो उसने कहा नहीं। She said no.
तो यीशु मसीह 11वें वचन में क्या कहता है? Then Jesus says in verse 11, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं लगाता। I do not condemn you either. आमीन। ये वर्ड वो सुन पाई, And listen to this. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। I do not condemn you. अगर वो चली जाती तो ये वर्ड यीशु के मुंह से वो कभी नहीं सुन पाती। If she would have left from there, she would have not heard this from Jesus. हम क्या करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हमारा लाइफ हम मेस कर देते हैं, What do we do when we mess up our lives? हम भागते हैं। We run away. और ये स्वभाव हमें कहाँ से आया है? And where do we get this attitude from? आदम से। From Adam. आप उत्पत्ति अध्याय 3 के 8 में देखना, If we read Genesis chapter 8, वहां पर देखते हैं जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आया, over there when God comes to meet Adam, जब परमेश्वर आदम से मिलने आया, when God comes to meet Adam, आदम भाग गया। Adam runs away. क्यों? Why? दो चीज हुआ वहां पर। Because two things happened there. एक तो आदम The first one was because Adam, गिल्ट में आ गया, he was having guilt. शर्मिंदा हो गया, He was वो embarrassed बोला मैं नंगा हूं। because he was naked. दूसरा, And the second, आप आगे पढ़ोगे तो बोला वो परमेश्वर का भय आ गया उसके अंदर। he had this fear of God in his heart. जब भी एक व्यक्ति पाप करता है, When a person falls in sin, गिल्ट हमारे अंदर आता है, there is guilt. राइट? दूसरा चीज आता है, And the second thing that comes in, प्रभु मुझे माफ करेगा क्या? the question whether God will forgive. और इस कारण हम परमेश्वर से भागते रहते हैं। And that is why we keep running away एडम from और God. ईव ने पहले यही किया था। Adam and Eve did the same thing. आज भी बहुत सारे विश्वासी वो करते हैं। And even today a lot of believers are ब्रदर्स एंड doing सिस्टर, that. मैं भी वो करता था। Brothers and sisters, I was doing जब that. मैं पाप करता था, When I would sin, फॉरगिवनेस मांगता था, I would ask for forgiveness. फिर से अगर मैं वो पाप कर देता था, And if I would fall in the sin मुझको again, ऐसा फील होता था कि मैं कितने बार ये पाप कर रहा हूँ, I would feel that I'm falling in this sin so many अब times. प्रभु मुझे क्यों माफ करेगा? Why will the Lord forgive me ये now? मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। I'm doing it purposely. और उस वजह से मेरा विवेक मुझे परमेश्वर के पास जाने से रोकता था। And because of that, my conscience would stop me from going to और मैं Jesus. बाकी सब चीज में एक्टिविटी में था, लेकिन प्रभु के साथ संगति में नहीं कर पाता था। And I was doing all other activities, but I was not in fellowship with the Lord. लेकिन ये कुछ मतलब का नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर। But this is of no value. हम यहाँ के गीत गाए, हम यहाँ के कुछ भी करें, कुछ मतलब का नहीं होगा। If we sing here or do any other thing in the church, it's of no use. अगर मेरा प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, If I have no fellowship with कुछ God, मतलब का नहीं। हम संडे हर दिन आकर बैठ के यहाँ पर all of these things are, even sitting here is of no use. इधर आराधना करके, Of worshipping over एक here, दूसरे से फेलोशिप करके, being fellowship over here. अगर हमारा प्रभु के साथ संबंध नहीं है, If we don't have a relationship with ये God, मैंने सीखा ब्रदर्स एंड सिस्टर। this is what I have learned. मैं हमेशा भागता था प्रभु से, I was always running और away बाकी from सब God. चीजों में मैं आगे रहता था। And in other things, I was always ahead. लेकिन एक दिन प्रभु ने एक वचन से मुझसे बातें किया। But the Lord spoke to me from one मत्ती word. अध्याय 7 के 21 में प्रभु ने मुझसे कहा, Matthew chapter 7 verse 21. उस दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैंने तेरे नाम से वो किया। In that day, a lot of people will say, Lord, I did this in your name, I did that in your और name. यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे खुलकर कहूंगा, हे पाप में रहने वाले, मुझसे दूर चले जा। And Jesus will say, you unrighteous person, depart from me. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन मुझे छू गया। This verse touched me. और उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ये कुछ भी नहीं करना, And I said to the Lord, I don't want to do any of these किसके other लिए प्रे things. करना नहीं है मुझे, I don't want to pray for जाके anyone. गीत नहीं गाना, I don't want to sing मुझे songs. आपके साथ फेलोशिप चाहिए। I want to have ये fellowship सब with चीज को you. मैं वैल्यू नहीं दूंगा, I do not want to value जिसको these मैं अभी other तक दे रहा things, था। that I was valuing till now. मुझे आपके साथ फेलोशिप चाहिए। I want to have fellowship with you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत महत्वपूर्ण है This is very important. प्रभु के साथ संगति। To have fellowship भले with आप God. गीत गाते नहीं हो, Whether you, even if you're not singing, भले आप कुछ बजाते नहीं हो, even if you're not playing any instrument, भले आप कुछ फेलोशिप किसी के साथ नहीं होता रहेगा, even if you're not able to आप fellowship with प्रभु के साथ anyone, फेलोशिप जरूर रखना। your fellowship with God is ये important. महत्वपूर्ण है, This is the most important thing. क्योंकि आखिरी दिन में यही चीज काउंट होगा। Because in the last day, this is the most और important ये thing. स्त्री रुकी रही, And this woman was standing और there. यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। And Jesus says, I do not condemn you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें प्रभु से भागना नहीं चाहिए। Brothers and sisters, we shouldn't run away from जब भी Lord. हमसे मैस होता है हमारे लाइफ में, Whenever we may end up messing our कुछ lives, भी गलती हो जाती है, any sin, रिमेम्बर हमारा परमेश्वर we should remember that our Lord, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He's a God of grace. भजन संहिता 37 में जब हम देखते हैं, We see in Psalms 31, उसके 37 Psalms उसके 37, 26 वचन में हम देखते हैं, Psalms 37 वहां verse पर क्या लिखा है 26. देखो, वो दिन भर अनुग्रह करता है। Psalms 37 verse 26, can anyone read?
All day long he is gracious. देखो ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन वो अपना कृपा हमारे लिए देता है। It says over here, all day long he is gracious towards us. देखो थोड़े टाइम के लिए देना है तो प्रभु पूरा दिन नहीं वेट करेगा, राइट? If he had to just give it for a little while, he wouldn't wait all day. वो पूरा दिन रुक रहा है। But he's waiting all day. क्यों? Why? क्योंकि वो उसको पता है हम कई बार ठोकर खा सकते हैं। Because he knows that we will fall during the day. तो जितने बार हम गिरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, So no matter how many times we fall in the सबसे day, पहला चीज क्या करना है? what is the first thing? उठ के प्रभु के पास जाना है। You have to get up and go to God. बाकी सबको छोड़ दो। You have to forget everything else. वो औरत ने मैस किया था, प्रभु के साथ खड़ी हो गई, And this woman messed up her life, but she stood over there. अपना समय प्रभु को दे दी। She gave her time to मुझे God. प्रभु से कुछ सुन के ही जाना है, That I want to listen something from the और वो Lord. चीज ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। And that thing changed her life. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, And this is what I want to say to जब you. कभी हमसे कुछ गलती होती है, When we do any sin, पाप होता है, any sin, किसी को कुछ बोल दिया हमने, if you say something to someone, वो कंडेमनेशन में बैठो मत, and do not sin in that, sit in that क्या करो? condemnation, what should you do? सीधे जाओ परमेश्वर से कहो And go to the Lord और प्रभु के साथ मेल मिलाप करो। and have fellowship with God. भजन संहिता 37 में हमने वो वचन पढ़ा, राइट? We read this in Psalms 37. उसका 26 पढ़ा, अभी 24 पढ़ो। And we read in verse 24. चाहे वह गिरे तो भी पड़े न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा हाथ थाम कर उसे उठाएगा। When he falls, he will not be hurled headlong, because the Lord is the one who holds his hand. देखो यहाँ पर लिखा है, अगर हम गिर भी जाए Over here it says that even when we fall, तो भी हम वहां पड़े नहीं रहेंगे, we will not be hurled headlong, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ थाम कर हमें खड़ा करेगा। because it is the Lord who will hold our hand. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें एक जगह पर गिरे रहना नहीं है। We don't have to be fallen in one place. जब हम गिरते हैं Whenever we fall, तब हमें मालूम होना चाहिए मेरे उठाने वाला कोई है। whenever we fall, we should know there's someone to pick us up. परमेश्वर है हमें उठाने के लिए। It is the Lord who will pick us up. भूल जाते हैं हम ये बात, We forget this thing. हम सोचते हैं हम गिर गए, हम वहीं पड़े रहेंगे। And we feel that if we have fallen, we are going to be in that नहीं, state. हमारा एक पिता है। No, we have a Father. बाइबल कहता है जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्यार किया। The Bible says that when we were sinners, He loved us. आप यहाँ बैठे हो, ऐसे अचानक से आके बैठे नहीं है, And because you are sitting here, you do not just come here just like that. किसी ने बुलाया करके आप नहीं आए हो ब्रदर्स एंड सिस्टर। You did not come here because someone invited you. ये यीशु ने आपको बुलाया है, It is the Lord who has called you here. यीशु ने आपको लाया है। It is the Lord who has brought you here. अगर प्रभु अपनी नजर आपके ऊपर रखता है If the Lord has His eyes on you, तो क्या आप सोचते हो कि प्रभु आपको छोड़ देगा? so do you think the Lord will just leave you? पॉसिबल ही नहीं है। This is not possible. यीशु मसीह कहता है यूहन्ना अध्याय 6 में, Jesus says in John verse chapter जो 6 कोई मेरे पास आएगा that whoever comes to me, उसको मैं अपने पास से कभी नहीं निकालूंगा। I will not cast him ये out. यीशु का वादा है। This is God's promise. हम किसके पास आए ब्रदर्स एंड सिस्टर? Whom have we come to? क्या कोई ब्रदर, क्या कोई एल्डर के पास आए हैं? Have we come to any brother or तो any हमें ठोकर elder? मिलेगा। Then we might be cast away. कोई ब्रदर को हम ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, If we give a lot of importance to a ठोकर brother, मिलेगा। we may मैं खा be- चुका हूँ, that's what happened मैं with खा me. चुका हूँ। मैंने पास्टर को वैल्यू दिया था I gave a lot of importance to a pastor और मैंने ठोकर खाई, and I stumbled. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ And that's why I'm saying, हम क्यों आए? why are we कोई here? ब्रदर सिस्टर के लिए आए हैं? Have we come here for a brother या or हम a यीशु sister? के लिए आए हैं? We've come here for Jesus. अगर हम यीशु के लिए आए हैं, And if we have come for यीशु Jesus, कहता है मैं तुझे अपने पास से कभी नहीं निकालूंगा। Jesus says that I will never cast you away. देखो यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए आए ब्रदर्स एंड सिस्टर। Jesus came to save us from our sins. मत्ती अध्याय 1:21 में हम पढ़ सकते हैं, We read that in Matthew chapter 21. वहां पर गब्रिएल आके कहता है तू उसका नाम यीशु रखना, Over there, Angel Gabriel says that name this child Jesus, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। because he will save his people from their sins. हम कौन से यीशु की सेवा कर रहे हैं? Which Jesus are we serving? ये ध्यान दो ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या यीशु मुझे पापों से छुड़ा रहा है? Do we remember that Jesus is the one who is saving us from our एक sins? बार एक शालोम मिनिस्ट्री का कोई एक घर में आया था मेरे, So there was someone who visited my home who's from the Shalom यहोवा विटनेस, Ministries. सॉरी यहोवा विटनेस, Jehovah Witness. और बहुत कुछ वो बता रहा है, एक वचन यहाँ, एक वचन वहाँ, एक वचन यहाँ। He was talking about a lot of verses from here and there. मैंने सब सुना, I heard all of it. मैंने उससे बोला मैं एक सवाल पूछूं आपको, And I asked him, can I ask you a question? जो यीशु के बारे में आप मुझे बता रहे हो, The Jesus that you're talking about, ये यीशु ने आपको पाप के ऊपर विक्ट्री दिया है? has this Jesus given you victory over sin? झूठ के ऊपर दिया है? Has he given victory over lies, गुस्से के ऊपर दिया है? over anger, पाप के ऊपर दिया है? over sin,
वो क्या किया पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर? Do you know what he did? एक मैंने क्वेश्चन पूछा, I just asked one question. खड़े हो गया, And he stood up ओके थैंक यू, और चले गए, and he said, okay, thank you, and he left. कुछ नहीं बोला. He didn't say anything. मैंने उससे कहा ब्रदर जो आप गॉस्पल दे रहे हो ये गॉस्पल मैं 10 साल से सुन रहा हूँ. So I told him, brother, this gospel that you're preaching me, I've heard this from 10 years. मैंने मिरेकल वाला गॉस्पल सुना है, I have heard the miracle शुगर gospel, कोटेड वर्ड सुना है, the sugar-coated verses, चंगाई छुटकारा वाला देखा है, the healing gospel, ब्लेसिंग वाला देखा है. blessing आप भी एक gospel. नया लेके आए हो. And even you have brought something new to me. लेकिन बाइबल वो यीशु के बारे में नहीं कहता. But the Bible doesn't talk about अगर this यीशु Jesus. आपको पाप से नहीं छुड़ा रहा है If Jesus is not saving you तो from कोई your sins, दूसरा यीशु आप प्रचार कर रहे हो. then you are preaching another Jesus. मुझे जो यीशु मिला है वो मुझे पाप से छुड़ा रहा है, The Jesus that I have met saves me from my लेकिन sins. उसको वो नहीं चाहिए था, But he didn't want that. चले गया. And he went away. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर हमको ये मालूम रहना चाहिए, हम यहाँ आते क्या यीशु मुझे पाप से छुड़ा रहा है. So when we come here, do we realize that Jesus is saving us from सोचो our कौन sins? सा पाप हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा है. Which is the sin which is having hold over our lives? क्या हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे पाप से विक्ट्री दे, और प्रभु ने हमें दिया है? Are we asking God, Jesus to give us victory over it, and have we got victory over वो it? ध्यान दो ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो चीज पे ध्यान दो. And keep that in mind. अगर वो चीज पे हमें विक्ट्री नहीं मिल रहा, If we don't get victory over हम it, वही चीज करते रह रहे, we will keep doing it again and again. तो हमारे लाइफ में यीशु क्या कर रहा है? Then what is Jesus doing in our life? बाइबल कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. The Bible says that where there is spirit, there is freedom. यीशु मसीह हमें छुड़ाने आया है. Jesus came to free us. जैसे हमने सुना अब 1:21 में, मत्ती 1:21 में, Just like we heard in Matthew chapter तो 1, उसका नाम यीशु 21, रखना, that you name him Jesus, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा. because he will save his people from their sins. देखो यीशु मसीह हमें कंडेम करने नहीं आया, Jesus has not come to condemn us, किसी को भी नहीं. none of us. यूहन्ना हम देखते हैं, यूहन्ना अध्याय We see in John चैप्टर 3 वर्स 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be judged through him. ब्रदर्स एंड सिस्टर ये ध्यान रखो, प्रभु हमें बचाना चाहता है. So keep this in mind that the Lord wants to save us. अगर हम पाप में गिरे तो यीशु हमें बचाना चाहता है. So if we fall in sin, the Lord wants to save ये हम us. भूल जाते हैं, We forget हम this भागने लगते हैं, and we start running away दूसरा from चीज him. में एक्टिविटी में खो जाते हैं, We lose ourselves in other activities. और हम भूल जाते हैं कि मेरा प्रभु के साथ रिश्ता इंपॉर्टेंट है. And we forget that our relationship with God is इधर important. हमने पढ़ा प्रभु मुझे बचाना चाहता है, Over here we read that God wants to save us. वो हमारा पाप गिनते नहीं बैठा है. He's not counting our sins. देखो पुराने नियम में भी जब प्रभु आदम के पास आया, Even in the Old Testament, when God came to Adam, पहला क्वेश्चन प्रभु ने क्या पूछा आपको पता है? what was the first question that he asked? आदम तूने क्या किया, Adam, what did you do? ये फल खा दिया, You ate of the fruit. ऐसा पूछा गया? Did he ask this? नो. He did not ask बोला this. आदम तू कहाँ है, He asked Adam, where are you? मैं तेरा फेलोशिप मिस कर रहा हूँ. That I'm missing your fellowship. वहाँ है, वेयर आर यू, Where are you? क्यों मुझसे छुप रहा है? Why are you hiding from me? ये क्या चीज बताता है? What does this say? पुराने नियम में यीशु नहीं था, In the Old Testament, there was no यीशु Jesus. मरा नहीं था, Jesus had not died. लेकिन then. फिर भी उसने पाप करने पे भी प्रभु ढूंढ रहा है उसको. But in spite of that, the God is looking for him. तो ये चीज हमें क्या दिखाता है ब्रदर्स एंड So सिस्टर? what does this show? प्रभु हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, That the Lord wants to fellowship with us. इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है. That's why He gave His only Son to अगर us. फिर भी हम भागते रहेंगे Even then, if we keep running away तो from हमें Him, ठोकर मिलेगी. then we will be stumbled. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर यीशु हमें बचाने के लिए आया है, So, brothers and sisters, Jesus has come to save us. लेकिन बाइबल कहता है But the Bible says, यीशु मसीह ने किससे प्यार किया, कोई बोल सकता है? whom did the Jesus love? Can anybody answer? हाँ, क्या बोल रही सिस्टर? यीशु मसीह ने हम पापियों से प्यार किया, राइट? So Jesus has loved us sinners. लेकिन पाप से प्यार किया क्या? But does He love sin? हिब्रू 1:9 Hebrew chapter 1 verse वहां 9. पर लिखा है ही लव्ड राइचियसनेस, राइट? Over there it says He loved righteousness. और दूसरा क्या बोला? ही हेटेड इनिक्विटी, He hated iniquity. उसने अधर्म से बैर रखा. Yeah, He hated iniquity. पाप को हम लाइट नहीं ले सकते हैं. We cannot take sin lightly. प्रभु ने हमें क्षमा किया, Lord has forgiven us. प्रभु वो नंबर गिनते नहीं बैठा है, So the Lord is not प्रभु counting हमें it. उठाता है,
He raises us up. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हम पाप को लाइटली लें। That doesn't mean that we should take sin lightly. इधर लिखा है प्रभु नफरत करता है पाप से। Over there it says that the Lord hates iniquity. हमारे अंदर वो हृदय आना चाहिए। And we should have that kind of a हम heart. पाप को सिर्फ नो नो नहीं बोलना चाहिए, We should not just say no to sin. हेट करना है। We need to hate it. और ये कैसा हमारा स्वभाव ऐसा नहीं करेगा brothers and sisters। And we don't have a natural attitude क्यों of पता है? this. पाप में एक थोड़ा सा खुशी मिलता है, Because sin gives us pleasure. थोड़ा सा टाइम का खुशी मिलता है, It gives us a little amount of little time of और उसके pleasure. बाद बहुत टाइम का रिग्रेट देता है। And then gives us a long time of regret. इस कारण कई बार हम उसको मना नहीं करते हैं। And that's why we're not able to say no to sin. लेकिन ये पाप एक बार वो जन्म लेता है, But once this sin is born, परमेश्वर की महिमा से हमको दूर करता है। it takes us away from the glory of God. हम याकूब अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं, 1:14 में आई थिंक वो लिखा है पाप कैसे गर्भवती होता है। We can read that in James chapter 1 that how sin is born. वहां पर कैसे वो गर्भवती होता है उसके विषय में लिखा है। It says how sin takes birth in us. एक थॉट्स हमारे मन में आता है, That the thought comes into our mind जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं and then we multiply it और उस पे काम करते हैं, and dwell on it तब पाप काम करने स्टार्ट and करते हैं। then sin starts taking root. एक पास्टर से मैंने ऐसा सुना And I heard this from a pastor कि कोई भी बर्ड को हमारे ऊपर से उड़ने से हम रोक नहीं सकते हैं। that we cannot stop a bird from flying over कोई our रोक head. सकता है क्या? वो आपके Nobody सर can से उड़ते stop. रहेगा तो नहीं रोक पाएंगे, राइट? लेकिन उसको अपने सर में घोंसला बांधने से रोक सकते हैं, But we can stop the bird from making a nest on us, राइट? isn't it? हमारे सर में आके घोंसला बना दे तब तो हमको मालूम पड़ेगा ये क्या बना रहा है मेरे सर में। If the bird tries to come and make a nest over our head, we can definitely stop the वैसा ही bird. सिन का काम है। And similarly, sin works. पाप हमारे मन में आएगा जाएगा, लेट इट कम, That sin comes into our mind and it comes and goes. लेकिन हमको क्या करना है? But what should we do? आई रिजेक्ट इट That we should reject इन द it नेम ऑफ जीसस। in the name of Jesus. यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? जब उसको विचार आया When Jesus got तू अपने आप को thought गिरा दे, that to fall into तू temptation, प्रूव करके दिखा तू परमेश्वर का पुत्र है, that prove that you are the son of God, उसने वो चीज को नहीं अपनाया। he did not get into उसने it. बोला गेट अवे फ्रॉम मी सैटन। He said, "Get away from me, Satan." थॉट्स को क्या बोला? गेट अवे फ्रॉम मी। What did he say? Get away from me, हमको वो Satan. करना है। And this is what we have ऐसे to इविल do. थॉट्स हमारे अंदर आता है, When we have evil thoughts, गेट अवे फ्रॉम मी, get away from me. गेट अवे Get away. इन जीसस नेम। And in Jesus' वो name. भाग जाएगा। And it'll run away. लेकिन बाइबल कहता है अगर हमारे हाथ में कुछ अश्लील चीज आई, But the Bible says if we have some bad thing in our आप hand, गेट अवे बोला तो नहीं जाएगा वो। if you say get away, it won't go away. उस टाइम पे आपको भागने बोला है, That time you have to flee, राइट? isn't it? अगर आप एक कमरे में बैठे हो If you're sitting in a और room कुछ अश्लील चीज आपने देखा, and there's some वो obscene आपको thing, टेम्प्ट इतना करेगा कि गेट अवे, आप गेट अवे गेट अवे गेट अवे, आपके मुंह से वो ताकत नहीं निकलेगी गेट अवे बोलने, that you will not have the strength to say get away, क्योंकि वो पाप आपको इतना आकर्षित करेगा, because that sin will just tempt you तो so much. पावर नहीं रहेगा आपके अंदर। You will not have that power. उस समय बाहर जाओ, At that point, flee सबके from बीच there. में आओ, Come in between. गेट अवे ना हो, ऐसे say get बोलना, away. तो भाग जाएगा। So it'll get सो away. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिन को हमें लाइटली नहीं लेना है। So we do not have to take sin यीशु lightly. मसीह ने उस स्त्री से कहा, So God said to the adulterous मैं तुझे woman दोषी नहीं that ठहराता, I do not condemn लेकिन you, आगे कुछ बोला है उसको, but he says something ahead. जाके आगे से पाप मत कर। But go, do not sin from now. हम कई बार ये वचन भूल जाते हैं, We forget this हम बोलते हैं sometimes. अरे यीशु ने उसको क्षमा कर दिया, And we say that Jesus अरे has आगे forgiven लेकिन us. बोला क्या है? But he says something ahead also. पाप मत कर आगे से। That do not sin anymore. देखो सोचो, अगर प्रभु ने हमारे सारे पाप क्षमा किया, So imagine if God has forgiven all our sins आगे से पाप मत कर, and says that do not sin anymore. पॉसिबल है क्या? Is it possible? फिर भी हमसे होगा पाप। But we still end up तो वहां sinning. पर ऐसा क्यों लिखा है, गो एंड सिन नो मोर? Why does it say over there go and sin no उसका more? मतलब क्या है? What does it mean? क्यों प्रभु ने ऐसा बोला? Why does God say like देखो that? हम पहला यूहन्ना में देखते हैं, We see in John chapter 1, उसका 3रा अध्याय, verse 30. उसका 9वां वचन, 9, फर्स्ट जॉन 3 वर्स 9। कैन एनीवन रीड इन इंग्लिश? इंग्लिश में पढ़ो, अच्छा इंग्लिश में अच्छा है वर्ड्स। यस, देखो यहां पर लिखा प्रैक्टिस करता है सिन का, राइट? Over here it says that no one who is born of God practices sin. ऐसा नहीं लिखा नो वन इज बोर्न हु सिंस, Here it doesn't say no one who is born of God sins. तो मुश्किल हो जाता था। Then it would have been difficult. जो कोई प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, ऐसा लिखा तो मुश्किल हो That जाएगा, one who is born of God doesn't sin, then it will become very difficult. क्योंकि हमसे पाप होता है।
Because we do end up sinning. राइट? कितने दिन में कितने बार हमसे पाप होता है, And in a day we sin so many times. लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस सिन। But over here it says practices sin. उसका मतलब वो अपने रोज के दिन में उसका अनुसरण कर रहा है, उसको करे जा रहा है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। That means that in his everyday life he is continuing to do it purposely and he is not even bothered about it. यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा है कि जा मैंने तुझे क्षमा किया, फिर से कभी पाप मत कर। Jesus didn't say that I have forgiven you, now don't go, sin anymore. यीशु को खुद को मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, Jesus knows that this is not possible. उससे फिर से पाप होगा। That this person will लेकिन यीशु मसीह का sin again. बोलने का अर्थ ये था कि तू जो लाइफ जी रही थी वो मेस हो गया है, But the meaning is that the life that you are living is messed up. अब से तू वो लाइफ मत जी। Now do not live that kind of a life एक again. व्यक्ति 38 साल से कुएं के पास बैठा था, There was one person who was sitting near the well since 38 years, वो सोच रहा था कि कोई तो मुझे उस पूल में लेके जाके डुबाए, and he was thinking that at least someone should come and put me in the और pool. यीशु ने उसको ठीक किया। And Jesus healed him. और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा पता है? And what did Jesus say to him? फिर से पाप मत करना, That do not sin again. अगर तू वापस पाप करेगा If you sin again, इससे भी बुरी दशा तेरी होगी। your state will be worse than this. तो ये पाप हमको बुरी दशा में ले जाएगा, So the sin takes us into a very bad state. लेकिन परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन देना चाहता है। But God wants to give us a good life. वो चाहता है कि हमें विक्टोरियस जीवन दे, That we have a victorious life. सबको। All of us. इसके लिए बाइबल रोमन्स अध्याय 8 के 1 में लिखा है, इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडेमनेशन। That's when Romans 8:1 it says that in Christ there is no प्रभु condemnation. हमको कंडेम नहीं करना चाहता है, He doesn't want to condemn us. वो चाहता है कि हम उसके साथ जिए, He wants that we live with Him. वो चाहता है कि उसके साथ एक फेलोशिप रखे। That we have a fellowship with Him. क्या हम रखना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर? And do we want to have that ये fellowship? बहुत इंपॉर्टेंट है। This is the most आप important. जूड का पुस्तक पढ़ो, जूड चैप्टर 1, If you read in Jude chapter 1, उसमें एक ही चैप्टर है। ओके, जूड चैप्टर 1 उसका 24वां वचन। verse 24. एनीवन कैन रीड? देखो यहाँ पर लिखा है, नाउ ही इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, है ना? राइट, ऐसा लिखा है ना? So over here, what does it say that to him who is able to keep you from stumbling? एबल टू क्यों लिखा है? What does it say able to? एबल टू क्यों लिखा है? Why does it say ही like विल that? कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, ऐसा क्यों? Why doesn't he say that he will keep you from stumbling? समझा? Can you see the difference? नहीं समझा? वो वचन हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, I will read it in Hindi. और वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो बचाएगा? So it says that to him who is able to keep you from stumbling, and why doesn't it say that he who is able, he who He can- keeps you from हाँ, stumbling? हाँ, वो क्यों ऐसा लिखा है? Why is it written like क्योंकि that? वहां पर अपना विष आता है, Because over there even our wishes come. हमारा विल आता है। Our will is over. क्या मैं बचना चाहता हूँ? Do we want to be saved? परमेश्वर रेडी है बचाने के लिए। God is ready to वो save वहां us. पर हम वचन पढ़ सकते हैं, ही इज एबल टू, वो कर सकता है। Over there it says that he is able to. लेकिन क्वेश्चन है, क्या मैं बचना चाहता हूँ? But the question is, do we want to be? आपको पता है संसार में ज्योति आ गया है, In the world, the light has come. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? But the problem is, कंडेमनेशन क्यों आ रहा है पता है? why is there condemnation? दंड क्यों आ रहा है पता है? Why is there judgment? पाप की वजह से नहीं आ रहा है। Not because of sin. यीशु मसीह आ गया है Jesus has come हमें बचाने के लिए, to save us. फिर भी दंड क्यों आ रहा है पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर? Why is there still judgment? आपको बताता हूं मैं। I will tell you. होशे अध्याय 4 में लिखा है, In Hosea it says, अज्ञानता की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं। because there is no knowledge, because of that the माय people are पीपल dying. पेरिश ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, है ना? अज्ञानता की वजह से लोग मेरे मर रहे हैं, Because people don't have knowledge, that's why they are perishing. पाप की वजह से नहीं मर रहे, Not because of sin, अज्ञान होने के कारण। because they do not have knowledge. अब देखो, आपको पता है यूहन्ना अध्याय 3 का 20 वचन 19 वचन देखो क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 19। जॉन 3 वर्स 19, ध्यान से सुनो ब्रदर्स एंड सिस्टर। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, देखो दंड की आज्ञा का कारण यह नहीं है कि पाप हुआ है। हिंदी बाइबल जिसके पास है जरा देख लेना ध्यान से, दंड का कारण क्या है? दंड क्यों मिलने वाला है लोगों को? उसका कारण पाप लिखा नहीं है यहां पर, उसका कारण क्या है? देखो, दंड की आज्ञा का यह कारण है कि ज्योति जगत में आई है, पर लोगों ने ज्योति से अधिक
अंधकार को प्रिय जाना। So over here it says that judgment, this is the judgment that the light has come into the world and men loved the darkness rather than the light. देखो लोगों ने प्यार किसको किया? So whom did the people love? ज्यादा किया मतलब थोड़ा प्यार यीशु से भी कर रहे हैं वो लोग, That means they love little bit of Jesus also. लेकिन ज्यादा किसको कर रहे हैं? But whom they loved more? अंधकार को। The darkness. इस वजह से दंड आ रहा है। And that is why judgment has come. हमारे लाइफ में पाप हो रहा है, इसके लिए दंड नहीं आ रहा है। In our life also judgment has come in not because of sin. यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। Jesus has come to save फिर ये sinners. दंड क्यों आ रहा है? Then why is this judgment coming? लोग पाप से प्यार खुद कर रहे हैं। Because people are loving sin more. अपने जीवन का जो पाप है उससे लोग ज्यादा प्यार कर रहे हैं। Because they are loving the sin in their lives more. इस कारण दंड आया है। And that is why judgment is तो coming. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको चौकन ना रहना है। So we need to be careful. कोई पाप हमारे लाइफ में प्रभुता कर रहा है, Is there any sin having a victory over प्रभु के over पास us? जाए, So we need to go वो before पाप God, को प्रभु के सामने कन्फेस करे। confess it before the Lord. वो स्त्री खड़ी रही, That woman was standing over हम भी there. खड़े रहे प्रभु के We should सामने। also keep standing over जब there तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो बातें नहीं कर रहा है। till the Holy Spirit doesn't speak to us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर हम पाप से प्यार करेंगे, आपको एक बात बताता हूँ मैं। If we love sin, देखो क्या होगा, 2 थेस्सलुनियन में लिखा है, let us see what happens. It is in 2 Thessalonians. यहाँ पर लिखा है जो सत्य से प्यार नहीं करते हैं। 2 थेस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 9 सॉरी 10 देखो जो सत्य से प्यार नहीं करते हैं, So the one who don't love the truth, मतलब परमेश्वर जब आपको कुछ बताता है ये आपके जीवन का पाप है, that means when God shows some sin in your life, हमने इग्नोर कर दिया, we ignore it बोला लॉर्ड लेट मी एंजॉय दैट। and we say that Lord, let me enjoy it. मैं किसी को बताऊंगा नहीं, वो That I will not tell it to चर्च में anyone. बताऊंगा नहीं, I will not tell it in मैं the चुपके से church. करता रहूंगा। And I'll just continue doing देखो it. क्या होगा आपके साथ, What is going to happen? मैं See, डरा नहीं रहा हूँ, I'm not here to ये terrify परमेश्वर का you, वचन आपको बता रहा but हूँ। this is I'm telling you यहाँ God's पर देखो words. परमेश्वर जब हमको कुछ सच्चाई हमारे विषय में बताता है, When God tells us some truth about us, रिसीव इट। we need to receive कोई it. एल्डर बताता है, When some elder Receive says it. it, we should receive कोई it. ब्रदर बताता है, When some brother says अगर it, आपको लगता है पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, and if the Holy Spirit ब्रदर्स एंड speaks सिस्टर to you, रिसीव इट, you need to receive वो it. आपके लिए स्वतंत्रता लाएगा। That will bring freedom देखो to यहाँ you. पर लिखा है 10वें वचन में, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। And with all the deception of wickedness for those who perish. देखो यहाँ पर लिखा है वो डिसीव होते रहेंगे, Over here it says that this person will continue to be वो deceived. सोचेंगे मैं क्रिश्चियन हूँ, He will think that he is a मैं हर Christian, दिन संडे जाता हूँ चर्च में, that every Sunday is going to church, टाइट्स और मैं उपहार देता is हूँ, paying the tithe मैं यहाँ बहुत काम करता हूँ, and doing all यहाँ खड़ा work रह के गाना गाता हूँ, and singing over शेयरिंग भी here करता and हूँ, doing sharing also. कुछ फायदे का नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर। But all of this is of no हम use. डिसेप्शन में हैं, We'll be in क्योंकि deception प्रभु हमको कुछ चीज हमको बता रहा है, because God is telling हम us उसको something एक्सेप्ट नहीं कर रहे, and we are not हमको accepting it डार्कनेस पसंद है। because we like the इस कारण darkness. क्या होगा, यहाँ पर लिखा है, And because of that, what's going to happen? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। Because they did not receive the love of the truth. हम दूसरे को दूसरे की बुराई दिखाते हैं, And we show others their mistakes. लेकिन खुद हम देख रहे हैं क्या But are we seeing हमारे ourselves? लाइफ में क्या गलती है। That what is the mistake in our lives? लॉर्ड से कहो प्रभु मुझे बचाए उस चीज से, And ask the Lord to save you from प्रभु it. डेफिनेटली हमको बचाएगा, God will definitely save क्योंकि वो us हमारा उद्धार करने के लिए आया है। because He has come to save लेकिन us. अगर वो पाप से हम प्यार करेंगे, But if we continue to love वो that sin, सत्य को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, if we do not accept यहाँ the पर truth, लिखा है परमेश्वर उनको एक भटका देने वाली आत्मा उनके अंदर भेजेगा। so God will send a spirit of deception in them. ये भयानक बात है। This is a terrible thing. ये आत्मा परमेश्वर ने एक बार पहले भेजा है। And this spirit God has sent आपको before. पता है किसके अंदर? In whom? साउल। In Saul. ये आत्मा अंदर गया उसके, That spirit went inside वो him. अभिषक्त था प्रभु का, He was the anointed of लेकिन God. जब प्रभु का बात सुनने से वो पीछे पीछे हट गया, But when he refused to hear God, धीरे धीरे वो हट गया, he was पवित्र straying आत्मा away. चला गया, The Holy Spirit एक left him. दुष्ट आत्मा अंदर एंट्री And मारा। an evil spirit entered ये him. बहुत भयानक बात है ब्रदर्स एंड This is सिस्टर। a terrible उसके thing. बाद उसका जीवन विनाश हो गया। And after that, his life was destroyed. लेकिन आपको एक तरफ से मालूम है डेविड ने भी पाप किया, And even David sinned. और प्रभु का एक जन आके बोला तूने एक गलत किया है, And the Lord's prophet came and told him that you have sinned. उसने एक्सेप्ट किया, He accepted उसने it. बोला हाँ मेरा पाप है। And he said that this is my भजन sin. संहिता 15:1 में हम देखते हैं उसने कन्फेस किया लॉर्ड से, In Psalms 51, he confesses और it. बोला प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन, And he says over there that Lord, do not take away your Holy Spirit मेरे from हृदय me. की हड्डियों को मत तोड़, And do not break my bones. अपनी शांति मुझसे मत ले प्रभु। Do not take away your peace from me. और प्रभु ने उसको वो लौटा दिया। And the Lord returned it to him. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। So it's very important. यीशु ने उस स्त्री से कहा जा,
Jesus said to that woman, "Go. मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, I do not condemn you, पर आगे से पाप मत करना। but do not sin anymore." ये दोनों रेफरेंस को आप पकड़ के रखना। You have to keep in mind both these यीशु references. मसीह हमें पाप करने के लिए, हमें दोषी ठहराने नहीं आया है। Jesus has not come to condemn us. यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता देने के लिए आया He है। has come to give us freedom. यीशु मसीह हर एक पाप से हमें छुटकारा देने के लिए आया है। He has come to give us a victory over all of our sins. तो जब हमसे पाप होगा हमें क्या करना है? What should we do when we fall into हम sin? सबसे पाप होता है, राइट ब्रदर्स एंड सिस्टर? All of us end up sinning. पहला यूहन्ना अध्याय 2:1 में लिखा है, 1 John chapter 2 says, 2:1, 2 verse 1, प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम में से कोई पाप करे। it is not God's will that any of us पर sin. हमने सुना प्रभु नफरत करता है पाप से। We have heard that God hates क्या हम iniquity. नफरत करना चाहते हैं? Do we also want to hate it? क्या हम नफरत करना चाहते हैं? Do we really want to hate शुरू sin? शुरू में हम नहीं बोलेंगे प्रभु को, प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। In the earlier, we'll say that no, Lord, I don't want to वो sin. फर्स्ट स्टेज होगा। That will be the first और stage. सेकंड स्टेज में हम प्रभु मुझे नफरत है वो पाप से। And in the second stage, we'll say that Lord, I hate that sin. नफरत है कोई भाई बहन के पीछे से बात करने से। And I hate it to talk behind the back of any brother or नफरत है किसी sister. भाई बहन का मैं बुराई करने से। And I hate it to talk bad about any brother or नफरत है sister. घमंड करने से। And I hate it to be नफरत है झूठ बोलने से। to say lies. तो ऐसे अगर ये हम मांगेंगे प्रभु से, प्रभु डेफिनेटली देगा। If we ask this from the Lord, He will definitely give us. लेकिन परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 2:1 में लिखा है, यदि तुम पाप न करो, प्रभु की इच्छा ये नहीं है, यदि फिर भी किससे हो जाए, But it says in 1 John that even if someone falls into sin, तो हमारे पास है यीशु मसीह एडवोकेट, we have an advocate in Jesus Christ. वो हमारे लिए लड़ेगा, He is the one who will fight for us. वो हमारे लिए बातें करेगा। He is the one who will talk for us. बाइबल कहता है वो जीवित है प्रभु से हमारे लिए विनती करने के लिए। And He is the one who is before us to plead for us. जब पीटर ठोकर खाने वाला था, When Peter was about to stumble, प्रभु यीशु ने कहा, Jesus said, पीटर डर मत, मैं तेरे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ and Jesus said that Peter, I will pray for कि you, तेरा फेथ नहीं गिरेगा, that your faith will not भले तू fail. मुझे ठुकराएगा, Even if you deny भले तू me, रोएगा, even if you cry, लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ेगा, but that you will not leave क्योंकि me, मैं तेरे लिए प्रे कर रहा हूँ। because I am praying for you. सो ब्रदर सिस्टर, जीसस हमारे लिए प्रे कर रहा है। So, brothers and sisters, Jesus is praying for कोई us. है हमारे लिए जो हमारा ध्यान रख रहा है। There is someone who is taking care of us. तो बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि हम उसको सीरियसली लें, So, it's very important that we take this एक seriously बॉर्न अगेन लाइफ एक्सपीरियंस करें। to experience a born again life. बॉर्न अगेन लाइफ का मतलब क्या है? What is a born again life? आपको एक वचन बता के मैं खत्म करता हूँ। I'll end with a verse. लूक चैप्टर 7, यहाँ यीशु मसीह कहता है, लूक चैप्टर 7 वही चैप्टर में है, 8 चैप्टर 8 जॉन चैप्टर 8 जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। देखो बॉर्न अगेन का मतलब क्या है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। So verse 12 says, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, ये है but will born have the again light life. of life. So ये this है is the born born again life. वो अंधकार में नहीं चलेगा, He will not walk in भले वो darkness. गिरेगा, Even if he falls, लॉर्ड उठाएगा, he will get up वो प्रभु की ज्योति में चलते रहेगा। and he will continue to प्रभु walk की in the ज्योति में light. चलने का मतलब क्या है? What does it mean to walk in the हमारे light? सामने कुछ लाइट नहीं आएगा, There is no light that will come कि in हम front light of में us, चले। that we will ऐसा walk नहीं in होगा। that light. No, it will not happen like प्रभु की that. ज्योति में चलने का अर्थ ये है, It means, what does it mean? जो कुछ प्रभु मुझे बता रहा है मेरे लाइफ के बारे में, That whatever God tells us about my life, मैं लॉर्ड को बोला, लॉर्ड सही है ये बात, I will say, I will accept it और मैं प्रभु से रिपेंट करना चाहता हूँ। and I will repent about it. ऐसे व्यक्ति ज्योति में चलते हैं, And these are the kind of people who walk in the light. ऐसे व्यक्ति को प्रभु और ज्योति बताता है अपने लाइफ के। And to these kind of people, God gives more and more light. सो लेट ब्रदर एंड सिस्टर, हम परमेश्वर के पास हर दिन जाए। So let us go to the God every day. और हमने जैसे सुना भजन संहिता 34 में उसका 26 वचन, उसका अनुग्रह हर दिन वो हमारे लिए अनुग्रह लेके बैठा है। And like we heard in Psalms 37 verse 26 that He is gracious all day long. और 24 वचन में जैसे हमने पढ़ा, वो हमको गिरे रहने नहीं देगा, वो उठाएगा। And in verse 24 that He will not allow us to be hurled headlong, but और He हमने will सुना hold वो us हमें up. ठोकर खाने से भी बचाएगा, He will protect us from being hurled यदि along. हम चाहे तो।
And the condition is if we want. यदि हम चाहे तो If we want it. क्या हम चाहते हैं? Do we want it? ये प्रश्न है. That is the वो question. स्त्री के बारे में आगे नहीं लिखा है कुछ भी. There's nothing mentioned about that woman अगर वो ahead. स्त्री मरियम मगदलीनी है, If that woman was Mary Magdalene, अद्भुत काम उसके जीवन में हुआ है. there was amazing work in her life. उसका जीवन पूरा रीति से बदल गया था, Her life was changed completely. है ना? Isn't और वही सबसे पहली थी जो इसने यीशु का गवाह दिया. And she is the one who spoke about the risen Lord. पर वी डोंट नो वो लेडी कौन है. We don't know who is that बट woman. वो हम देखते हैं वो रुकी रही. But she was the one who stood there. और जब मैं वो पढ़ रहा था, लॉर्ड ने मुझे भी वहां स्टॉप किया. And when I was reading this verse, even the Lord, even I stopped over there. वो रुकी रही. That she was waiting over there. जब उससे पाप हुआ, मैस हुआ उसका लाइफ, वो परमेश्वर के उधर देखो, यीशु अकेला था लिखा है. यीशु अकेला था, वो स्त्री अकेली थी, वो फेलोशिप में रुकी रही. And over there, Jesus was there, and this woman was there, and she was just standing over there. So let's have a fellowship with God daily. So we should have fellowship with God daily.